Hello everyone, Namaskar. Welcome to Super Grad Scat by Top Rankers. And here I am with the most important thing which the students are seeking nowadays, which is strategy to the remaining days. Yes, we are left with only 60 days to CAT, and you should know how to cover each bit of it so that you get the optimum results. भाई best results कैसे आएंगे, उसकी तैयारी कैसे करनी, वो strategy में बहुत ज़्यादा depend करेगा. So this is the high time when students start feeling anxious और दे डू फील लाइक कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और दे डू फील लाइक कि क्या करें क्या ना करें सब कुछ तो कर लिया है पर फिर भी लग रहा है कि कुछ नहीं किया है. सो डोंट वरी, हियर वी आर विथ अ स्ट्रैटेजी which will definitely help you achieve whatever you are planning to achieve or whatever you have planned already. So let's look at the plan overview, what you should be doing in these remaining days. The first thing is concepts. तो भाई जिन लोगों ने अभी तक भी कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए आई विल बी टेलिंग यू कि कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ने हैं कैसे कवर करने हैं. बट those who have already done the concepts they can definitely, I will be giving you few topics for the given duration. You those who have already done the concepts they will definitely go ahead with the practice part of it, either through sectional tests or through topic tests or through previous year topic wise questions. So any which ways whatever suits you you can go ahead. Next is practice. Obviously those who are done with concepts they can directly start with the practice. Those who are not done with concept don't panic कि अब क्या हो सकता है. भाई concept करने के लिए भी हमारे पास time है, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं. प्रैक्टिस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, ऑब्वियसली आप थोड़े लेट हो गए बट बैलेंस किया जा सकता है, अभी भी हम कट ऑफ अचीव कर सकते हैं. थर्ड थिंग इज रिवीजन. यस, विद इन 60 डेज इट फील्स लाइक कि यार are these 60 days sufficient to do concept as well as practice as well as revision? So yes, the answer is yes, you can definitely achieve all these three outcomes. And revision plays an important role because if you're not revising or if you're just following the sessions or just solving the things and not revising them, it will not pass on to the permanent memory of your brain. Next, the fourth thing is sectionals. Yes, we do have to do sectional tests. That is what I told you. Those who are already done with concept, done with basic practice, then they can directly jump to revision and sectionals. And the most important thing is mocks. How many mocks you should appear for, how you should analyze them, what all things you have to keep in mind while analyzing them. So everything will be discussed in this session. So let's move on to our 60 days plan and I will be giving you everything topic by topic. So I have divided it into five parts. The first part is October 1 to 12. Yes, for initial 12 days, or I should say the first 2 weeks, how the first 2 weeks of October should look like. So if I talk about quants, your algebra and geometry should be over in these 12 days. These are very lengthy topics. So algebra per se, quadratic equations, special equations, starting from linear equations, so LERPV, and then a special equation, quadratic equation, then progressions, then obviously function and graph. So all these things will be should be done in algebra. Inequalities, modulus, indices, logs, and surds. So all these things you should plan all these things strategically in the first 12 days that you are doing it. And your geometry part like line, angle, and triangles. A major part तो इसी में है, circles एंड देन डेफिनेटली पॉलीगन्स तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है तो पॉलीगन बाद में आ जाएगा. पर लाइन एंगल एंड ट्रायंगल एंड सर्कल ये चार चीजें आप बहुत अच्छे से प्लान कर लीजिए, इन 12 दिन में ये हो जानी चाहिए. लेट्स लुक एट नेक्स्ट थिंग कि डीआईएलआर में क्या हो जाना चाहिए. तो मैंने इनिशियल 12 डेज में क्या होता है ना, हम डिफिकल्ट चीजें करके रख लेते हैं. डिफिकल्ट चीजें क्यों करके रख रहे हैं, ताकि हमें बाद में जब हम एंशियस हो जाते हैं, जैसे जैसे कैट करीब आता जाएगा डिफिकल्ट चीजें समझ में आना और बंद होता जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट कि डिफिकल्ट चीजें पहले क्यों करें, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. नहीं भाई, इट्स हाई टाइम फर्स्ट डू द डिफिकल्ट थिंग्स. इन मैथ्स ऑल्सो वी स्टार्टेड विथ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. इन DILR ऑल्सो यू स्टार्ट विथ वेन डायग्राम्स क्योंकि उसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, या गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक क्वेश्चन आता है, या रूट्स एंड नेटवर्क का एक क्वेश्चन आता है. तो इन तीन टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके सेट में आने वाला है, आपके स्लॉट में आने वाला है. तो ये तीन टॉपिक की रिगरस प्रैक्टिस, रिवीजन
सब कुछ किया होना चाहिए इन 12 डेज में। जिन लोगों ने बेसिक्स कर लिए हैं, they can jump onto sectional testing of these things, difficult testing by using previous year questions. And those who have not yet done the basics can very easily do the basics, because there are only three topics in DILR which I am giving you for 12 days. Next thing, if you are starting with RC practice, then definitely start with style and tone, question types, and then you can go to the mixed practice, that is basic practice, and then your target should be कि इतना होने के बाद you are doing philosophy and psychology. ये दो, again we have targeted the difficult areas first. Philosophy psychology वाले passages की understanding अगर अच्छी होती तो बाकी सब मैं बहुत आसानी से डील कर पाता हूँ। तो डेफिनेटली initial 12 days are going to be crucial, going to look like what I should say very much hectic, and बहुत आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब सब कुछ ही तो डिफिकल्ट है। क्वांट्स में भी डिफिकल्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एलआर में भी डिफिकल्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डीआई में भी डिफिकल्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सब जगह आई एम डूइंग दी डिफिकल्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज पैरा समरी एंड वर्ड पावर मेड इजी। ऑब्वियसली अगर वर्बल की बात करूं तो वर्बल में you have to start with para summary and word power made easy. Para summary के tricks, tactics, connectives, everything, flow, सब कुछ हमें खत्म कर देना इन 12 दिन में, because you will not be revisiting it. You will not get time to specifically deal with para summaries. These are the 12 days which is a make or break situation in the given 60 days कि पैरा समरी आएगा तो आएगा इन 12 दिन में, नहीं आएगा तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास ऑब्वियसली आगे के लिए और काम है। एंड इन दीज 12 डेज टारगेट एटलीस्ट 2 मॉक्स। यू आर डूइंग 2 मॉक्स, मतलब पांचवें दिन आप मॉक दो, छठे दिन एनालाइज करो, फिर पांचवें दिन आप मॉक दो, छठे दिन एनालाइज करो। सो प्लान एटलीस्ट 2 मॉक्स इन दीज 12 डेज, इनिशियल 12 डेज। नेक्स्ट थिंग इज अक्टूबर 13 टू 24, अगले 12 दिन की अगर मैं बात करूं तो अगले 12 दिन में सिंस आई एम डन विथ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, कुछ पोर्शन इसका बच जाएगा तो वो भी मैं कर लूंगा, पर अगले 12 दिन में अरिथमेटिक के सारे टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, then SICI, then average mixture alligation, and then your time, speed, distance, time and work. Everything is has got two, three, four, obviously variety of questions or four subtopics under these areas. So cover each of them in a comprehensive manner. Again, keep in mind that this is the last time you are doing it. इसके बाद you are not going to get any time to come back and look at these sections. नेक्स्ट, अगर डीआईएलआर में बोलूं तो डीआईएलआर में यू हैव टू फोकस ऑन मिसलेनियस डीआई प्रैक्टिस, जैसे वेब ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ प्लस लॉजिकल रीजनिंग हो गई, रीजनिंग बेस्ड डीआई हो गई वो। कनेक्टिव्स एंड बाइनरी लॉजिक, अब थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिव्स एंड बाइनरी लॉजिक को लेके बच्चे संशय संशय में होते हैं कि ये तो आते नहीं है सर, अभी क्यों करने हैं, बिकॉज इनसे हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती, सी वी आर डन विद द पोर्शन जो डेफिनेटली आता है, अब हमें अपना पेशेंस डेवलप करना है, हमें अपना पेशेंस डेवलप करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट इज आरसी में इकोनॉमिक्स एंड साइंस बेस्ड आरसी, ऑब्वियसली इफ यू लाइक फिलोसफी एंड साइकोलॉजी तो आपको फर्स्ट पोर्शन इजी लगा होगा, तो इकोनॉमिक्स साइंस आपको डिफिकल्ट लग सकता है, हो सकता है आपको दोनों ही इजी लगे, हो सकता है आपको ये वाला पोर्शन इजी लगे कि भाई आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड या आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बट हमें सब कुछ करना है। पेस्टल एक अप्रोच होती, PESTLE, तो हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल, लीगल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, तो सब कुछ कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इफ आई लुक एट वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी में पैरा कंप्लीशन और वर्ड पावर मेड इजी पैरेलली चलेगा। वोकैबुलरी 15 दिन में नहीं ग्रो हो सकती, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन इट टिल फॉर एटलीस्ट 30 days, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज in these 12 days you have to increase the frequency, every third day you have to appear for the mock, मतलब 3 दिन का गैप लेना है, फोर्थ डे यू हैव टू अपीयर फॉर द मॉक, देन 3 दिन का गैप लेना है, फोर्थ डे यू हैव टू अपीयर फॉर द मॉक, एंड देन 3 दिन का गैप लेना है, एंड द लास्ट फोर्थ डे विच इज द 12th डे और द 24th यू हैव टू अपीयर फॉर द मॉक। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे इंक्रीज की हुई है, रीजन बीइंग कि हमें टारगेटेड कम से कम इन 60 दिनों में 10 से 12 मॉक तो देने ही है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट थिंग इज 25th to 30 October, यू वुड से कि सर ये तो सिर्फ 6 ही दिन है,
Yes, rather I should write it as 31st October। तो 31st October तक आपके पास 7 दिन मिलेंगे। तो इन 7 दिन में क्या करना है, पूरा एक वीक का टाइम आपको मिल रहा है। पूरे एक वीक में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस नंबर। सिंस वी आर डन विथ अलजेब्रा, वी आर डन विथ ज्योमेट्री, वी आर डन विथ अरिथमेटिक्स, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली नंबर थ्योरी, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। और 7 दिन में ये आसानी से, 4 दिन आप नंबर थ्योरी एंड के लिए टारगेट कर लो, बचे 3 दिन आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी के लिए टारगेट कर लो, और बहुत इजीली इन 7 days यू कैन डू दैट। इन डीआईएलआर ऑब्वियसली आई हैव लाइटन अप द प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ आपके पास 7 ही दिन है, तो 7 दिन में अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स, जिनका बहुत हवा होता है, कि अगेन हम उस पे आ गए लीग पे, कि जो आते ही हैं जैसे क्वांट बेस्ड रीजनिंग, तो ये सब कुछ इन 7 दिन में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज आरसी हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स आपका जैसे बचा हुआ था, तो वही कि सारी चीजें जो भी आपकी वैरायटी है आरसी में, आपको सब कुछ कवर करना है। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट। जो आपके ऑड वन आउट होते हैं उसकी तैयारी करनी है आपको। वीए में जितनी भी वैरायटी बच गई है, मिसलेनियस प्रैक्टिस ऑफ वीए, वो आपको इस टाइम पे कर लेनी है। नेक्स्ट इज एंड इस वीक में अगेन हमने बीच में बहुत रिगरस मॉक्स दे लिए, अब हम मॉक्स की फ्रीक्वेंसी फिर से हमने कम कर दी है, कि इस वीक में एक ही मॉक टारगेट करना है। क्योंकि इस वीक में एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी, विच इज रिवीजन ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डन, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग अक्टूबर बाय देन, एंड अक्टूबर एंड में एक क्विक रिवीजन तो बनता है सब चीज का। सो यू शुड हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। नेक्स्ट, November 1 to November 15, नाउ योर प्रैक्टिस शुड बी कि भाई सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा टॉपिक था जो बच गया था, दैट इज मीन मोड मीडियन, क्योंकि उस पे डीआईएलआर में क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल, क्वांट्स में भी काफी देखने को मिल रहे हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस दैट, एंड योर अप्रोच फॉर द रिमेनिंग everything we have done, now your approach should be practice the wrong questions which you have done in the mocks and solve the PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और आपको रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट इज एनमेट। ऑब्वियसली 6 November से योर एनमेट विल स्टार्ट, तो आपको फर्स्ट वीक, इन 15 दिन में अगर आपने स्लॉट लिया हुआ है, तो यू हैव टू डू एनमेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। एनमेट ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव लाइंस पे होता है, स्नैप की तरह सिंपल लैंग्वेज वहां पे नहीं होती, तो एनमेट स्पेसिफिक प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी होगी। एंड अगेन फॉर कैट, और आई शुड से रिवीजन डीआईएलआर की अगर मैं बात करूं, तो डीआईएलआर में एनमेट की जो रीजनिंग होती है, अदर मैनेजमेंट टेस्ट की जो रीजनिंग होती है, वो थोड़ी अलग होती है, तो वो हमें यहाँ पे करनी चाहिए। क्वांट्स में तो अपना ऑलमोस्ट सब कुछ ही प्रिपेयर हो ही जाता है, वेदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और एनी अदर एग्जामिनेशन, वी डू इट, इफ वी डू इट होल हार्टेडली, तो डेफिनेटली हमारे हर वेराइटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इजी क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस डेफिनेटली हो ही गए होंगे। तो क्वांट्स में आई हैव नॉट मेंशन, बट डीआईएलआर में यू हैव टू डू दैट एनमेट स्पेसिफिक प्रैक्टिस। एंड योर अप्रोच फॉर कैट प्रैक्टिस शुड बी लाइक throw your wrong questions in the mock. Again, for RCs, you have to do NMAT specific RCs। NMAT के अलग लेवल के RCs आते हैं। GMAT is a great source to prepare for NMAT specific RCs, तो वहां से you can do that। नेक्स्ट, वर्ड ऑब्वियसली वीए थोड़ा हैवी होता है एनमेट में, तो वीए के लिए अपने ऑलरेडी तैयारी तो की हुई है, वोकैबुलरी हमें हेल्प करेगी। ठीक है, हमें पैरा समरीज, पैरा कंप्लीशन, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आते नहीं, ऑड मैन आउट आते हैं, कंफ्यूजेबल्स आते हैं, ईडियम्स फ्रेसेस आते हैं, तो इन सब की प्रैक्टिस अपने को करनी, विच इज कॉल्ड एनमेट स्पेसिफिक प्रैक्टिस। एंड देन डेफिनेटली you, for CAT you have to follow the same strategy in the first 15 days, which is practice through the wrong questions. Why did it go wrong? What was the reason? What was the logical gap between my thinking and author's thinking, between my thinking and the solution they have given? So you have to do whole lot of exercise around the wrong questions in the mock, wrong questions in the PYQs। previous year question में कुछ भी गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? And in this duration, again in these 15 days, you have to give 3 mocks। Again, we have increased the frequency, so you have to give 3 mocks। So total आपके कितने हो गए? 5 और 4 9 मॉक हो गए। बच्चे 15 दिन, 14 दिन ही बचेंगे अब इसके बाद आपके पास, 16 से लेके 29 तक, 30th इज योर डी डे। तो मॉक, पीवाईक्यूज,
रिवीजन अब कुछ भी नहीं सोचना है, अब आपको सिर्फ मॉक देना है। और यहाँ पे अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू द नंबर, ये 9 तो आपको बिल्कुल ऑर्डर से फ्रीक्वेंसी से देने, बट व्हेन यू रीच टू दिस स्टेज, यहाँ पे इट्स योर कॉल मुझे कितने मॉक देने, मुझे इन 14 दिन में एक मॉक देना, दो देने, तीन देने, सात देने। गारंटीड ये होना चाहिए कि हम उनका रिवीजन कर पा रहे हैं, हमें प्रॉपर टाइम मिल रहा है रिवीजन के लिए, हमें प्रॉपर टाइम मिल रहा है एनालिसिस के लिए। For DILR also you need to follow the same strategy. For verbal and reading comprehension also you need to follow the same strategy. So for every area rather मतलब उसके लिए I'm not giving you any mock number, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप कितने फ्लुएंट हो इन एनालाइजिंग। आई एम नॉट saying in terms of subject or in terms of areas or in terms of your understanding or learning. आई एम टेलिंग इट इन टर्म्स ऑफ मॉक एनालिसिस में कितने प्रो हो, है ना। और मॉक एनालाइज कैसे करना है, व्हाट वेंट राइट इज परफेक्टली फाइन, what went wrong, obviously everyone goes and looks at the solution and looks at the strategy approach and the steps they have followed to get the answer, and we are done with the analysis. But this is wrong approach. You have to follow the same steps for what is wrong, what is right. You should not be okay with ki bhai if something went right it means it was 100% accurate, the idea was perfect, the thought was perfect, the flow was perfect, and whatever I did was perfect. Maybe it can be a tukka, or it can be a random guess, or it can be a coincidence ki your answer went right, but your thought process has a gap, and this minute gap will widen when you enter into the real examination. So keep this thing in mind. Key for the actual examination, you need not to analyze only the wrong ones, but also the right ones. Analysis means solving each and every question deliberately and looking at the solution and just looking cross-checking what is the difference of the opinion, or what is the difference in the thought process, what is the difference in the reasoning behind my thought for the answer and the thought they have given for the answer, or the logic they have given for the answer. So that's all about a strategy. And why you might be surprised that something is yellow, something is green. Why is that? You can mark this thing, you can mark this table, paste this table, and color code it. Green means already done, and yellow means कि भाई ये मैं यहाँ पे नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा DILR, क्वांट और आरसी बहुत हैवी चल रहा था, तो ये मुझे नेक्स्ट वीक में शिफ्ट करना है या नेक्स्ट 15 डेज में शिफ्ट करना है। तो आपको जो चीज बैकलॉग रह गई उसका अलग कर लो, कोई चीज वीक एरिया है उसका अलग अलग कोडिंग कर लो। सो यू विल बी गेटिंग दिस शीट इन दी डिस्क्रिप्शन, आप वहां से ये शीट ले सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन यूज दैट। फ्रॉम सुपर ग्रेड्स व्हाट वी आर डूइंग, we are coming up with Super 30 batch. Yes. So those who want that rigorous grill of last 60 days. So we are coming up with that batch. And for that, it's not like you just come, enroll, and get into the batch. It is you have to appear for the mock test. You have to appear for the mock test. And those who are qualified will get the access to Super 30 batch. And once you qualify, what all things will be doing is, it is not, see, few of the students might be thinking कि भाई आप बाद में पार्शलिटी कर रहे हो, स्कूल जैसे कर रहे हो कि टॉपर्स की अलग क्लास बना दी, बैच बना दी। ऐसा नहीं है, ट्यूशन क्लासेस जैसे कर नहीं, दिस इज जस्ट भाई पर्सनलाइज्ड स्पेसिफिक अटेंशन टू स्पेसिफिक एरिया। अगर मैं एक एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके सुपर 30 में नहीं जा पा रहा हूँ, दैट डजेंट इम्प्लाई कि मैं 95 से 99 नहीं ला सकता, बट अभी मैं 95 पे हूँ, तो मेरे को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। मेरे को कौन से एरियाज में कैसे स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करनी है वो एक अलग बात। पर जो ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट क्वालिफाई करके उस रेंज में जा रहे हैं, तो उनका वो डिप ना हो, उसी लेवल की प्रैक्टिस चलती रहे, उसी लेवल का सब कुछ होता रहे, इसलिए ये टेस्ट है। सो डोंट फील inferior if you don't make up to the batch, but definitely you should try and register and definitely go ahead with writing the test so that you get to know कि भाई मैं कहाँ पर हूँ। और डोंट गेट डिसहार्टन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इसमें जाएंगे वो डेफिनेटली 99 लेके आएंगे और जो नहीं जाएंगे वो नहीं लेके आएंगे, नहीं, जो नहीं जाएंगे वो भी ला सकते हैं, पर जो जाएंगे उनका ये कंफर्मेशन हो
कि भाई ये डेफिनेटली 99 पॉइंट समथिंग लाने वाले, दैट इज व्हाई वी आर स्पेसिफिकली catering to this batch. So mark the date 30th of September, which is tomorrow, and the timings, that is 12:30 to 2:30. So with this, I would like to say thank you. Those who wish to connect with us on Telegram, then definitely they can note down these details. Telegram channel, Instagram channel, and YouTube channel. Thank you. Have a nice day. All the best. Keep preparing, keep subscribing, keep liking, and keep loving the grind, which we will be giving you through across these 60 days. Thank you. Have a nice day.